Hello. Okay. So it's a part of a curriculum. We have four things. So I'll tell you what is the purpose of each of the thing that we have. Okay. First and foremost thing is Excel. Excel is used for basic data crunching, data analysis, and all the things. For example, right now, if we go to any of the shop, okay, if you go to any of the shop, say grocery shop, departmental store, the records they are maintaining on a piece of paper. Okay, it will be very easy if it is being maintained on Excel because it's a very small data. Tomorrow they want to sum it up. What is the sales that we have on 15th of December 2023? Okay, 17th December, 20th December. What is the items that we have purchased? What are the items we have sold? Okay, and bit of analysis that can be done via Excel. Okay. Second concept that comes is when the data of the organization grows huge, the data size increases. Okay. Now, for example, all three of you have opened one company. Okay. You're taking care of employee hiring. You're taking care of product purchase. You're taking care of sales, which means you have the data every day how many items have been sold at what price. You have the data what item has been purchased at what price. You have the data which employee is being hired. Okay, which employee is being hired. Okay. We have all these three data, and you have the salary data as well. Which employee has how much of the salary. Sale purchase has been tremendous, which means on daily basis there are lakh of entries, million of entries. In that case, Excel will fail. So what you will do, you will maintain a database. This database is nothing but a SQL database, SQL database. Okay. In SQL, what you do, you maintain your table, you maintain your table, and you maintain your table. I'll just give an example. Yeah. This is, what's your name? Kuldeep. Kuldeep. Kuldeep is purchase manager. Your name? Yeah. Shreya. Shreya is sales manager. Your name? Jatin. Jatin. Jatin is HR. Okay. Now, what Kuldeep will maintain? Product ID, product name, quantity that is purchased, price, and date. Multiple entries will be there, like this. Now, Shreya will be maintaining the items like date, product ID, quantity, sold, and what price. You will be maintaining two tables. Employee name, employee ID. Employee ID, name, department, I think date of which the employee is being hired. Second is employee ID. You will also maintain
this item is being sold by which employee, for example. So you will also maintain the employee ID. You will maintain the employee ID as well. प्रोडक्ट को कोई एम्प्लॉय तो बेचेगा, ठीक है ना. और शायद ये भी मेंटेन कर सकते हैं कि द आइटम इज बीइंग सोल्ड बीइंग परचेज्ड बाय व्हिच एम्प्लॉय. अगर ऐसा नहीं है तो इट्स ओके, मतलब टेक दिस असम्पशन कि ऐसे ही है. आईडी कितनी है ना, बाकी सब डिटेल इक्विटी विल मेंटेन इन दिस. But in this case, we have 4 tables. Maintaining these 4 tables will be easy in Excel as well. You can maintain the 4 tables in Excel as well. But the time the number of records increase, it will be very difficult to maintain in Excel. So what you will do, you will maintain the SQL database. Nowadays, okay, now this data that you are maintaining is a relational data. You know, relational data is whenever the data is available in form of a row and column. देखिए एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी, उसका ये एक्सेल की रो में लिखा जा सकता है ना. दिस इज रिलेशनल डाटा. और स्ट्रक्चर्ड डाटा, ये स्ट्रक्चर्ड है. अगर आपने यहाँ पे आईडी डाली तो उसमें से आईडी ही आएगी. दिस इज स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है ना. I'll explain what is structured data, what is unstructured data, and many more things. लेकिन अभी इस पे फोकस करते हैं. So now, tomorrow you want to calculate the profit on a particular date or a particular month. In the month of December 2023, what was the profit? How will you take it? And second is, what you need to do is, how much profit is basically net profit. One is gross profit, the profit that you have earned by, that is purchase price minus sale price, is the gross profit. Net profit is that profit minus your expenses, that is the amount that you have paid as a salary, the amount that you have paid as a building expense, transportation and many things. But right now let's consider net profit as the profit that is after salary. अब ये मेंटेन करना है, ठीक है ना. अब क्या होगा, हाउ विल यू लिंक द टेबल्स टू कैलकुलेट. So first of all, what will be the purchase in the month of December is calculated with this table. Okay, say purchase is 1 crore. Now sale is being calculated by this table. Sales. But this might be a scenario कि सेल जो यहाँ दिसंबर में हुई हो वो नवंबर के परचेज प्रोडक्ट की हुई हो सकता है ना. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट अ की. देखो अब इसके अंदर आपने इन दोनों टेबल्स को लिंक भी करना होगा ना. यू हैव टू लिंक दीस 2 टेबल्स. कैसे लिंक करोगे, प्रोडक्ट आईडी प्लस उसकी डेट. अभी आपको लिंक करना हो तो यू कैन लिंक इट विद प्रोडक्ट आईडी. बट नाउ वी हैव अ इशू विद डेट. तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर से पहले हमें, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर द मंथ ऑफ December 23, for example. Now what you will do is you will take the month from this date. इस डेट से आपने कुछ एक्सट्रैक्ट किया, क्या मंथ. इस डेट से क्या एक्सट्रैक्ट किया, मंथ. यहाँ पे आपके पास एक नया कॉलम ऐड हो गया, इसे बोल रहे हो आप मंथ. फिर आप एक नई की बनाओगे. You will generate a new key that is month, for example December plus product ID. Product ID for example 1 2 3 दी, तो क्या हो जाएगी, that 1 2 3. Sales ID क्या हो जाएगी, that 1 2 3. या फिर हर के साथ मंथ आ गया,
दिसंबर, हो सकता है जैन आ जाए, फेब आ जाए, क्योंकि जो आइटम आपने दिसंबर में परचेज किए थे हो सकता है वो जैन में सेल हुए हो सकता है वो फेब में सेल हुए हो, समझ सकते हैं ना। तो यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई, मेक अ की। इसको आपने दिसंबर 1 2 3 बनाया, तो ये दिसंबर 1 2 3 से तो हो सकता है मैच हो जाए, पर जो मैच नहीं होगी उसको क्या करोगे, इन आईडीज को जो आईडीज बच जाएंगी आपकी, उसको बाकी मंथ से आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। दिसंबर के बाद से जैन 1 2 3, फेब 1 2 3, मार्च 1 2 3, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। फिर आप निकालोगे इनको आपस में लिंक करके कि 1 करोड़ की तो परचेज डायरेक्ट आ गई, पर सेल्स कितनी हुई थी, फॉर एग्जांपल 50 लाख, से एग्जांपल 1 करोड़ 50 लाख, 1 crore 50 lakhs. Then what you do is you will link this table with the employee table, employee salary table. You will ask the data from Jatin कि भाई सैलरी जो आपने दे रहे हो उसका बताओ हमें, ठीक है ना। आप एक मंथली निकाल रहे हो तो हो सकता है डायरेक्ट आप, अगर देयर इज नो चेंज इन द सैलरी, यू विल टेक अ मंथली सैलरी एंड यू विल कैलकुलेट इट। देयर इज a change in salary after the month of December. He has given appraisal to some of the people. He has increased the salary to some of the employees. तो क्या करोगे, तो आप उसकी इन्फ्लेटेड वैल्यूज भी लोगे कि पहले ये वैल्यू थी फिर ये वैल्यू हो गई, या फिर दिसंबर में मंथ निकालो तो दिसंबर का डाटा ले लो आप। अगर 1 महीने में सेल हुए, 3 महीने में सेल हुए, तो आप उसके आगे का डाटा लेना पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी तो आगे भी दी ना, ठीक है ना। तो आप ऐसे निकाल के फिर आप क्या करोगे, आप पूरा अप्रोक्सीमेट नंबर निकालोगे। सो दिस वर्क वी विल डू इन SQL. We will do in SQL. This is SQL. तो SQL के लिए हम क्या करेंगे, now these are the tables. When we have a combination of tables, many tables. Right now we have 4 tables, but when we normally talk about any organization, organizations have 100 of tables. When we combine all these tables, or when we collate all these tables together, it is known as database. Known as database. ठीक है ना। Collection of table is known as database. So in our SQL, what we will do, I will get a database. We will apply SQL into that database. एक टेबल को दूसरे से लिंक करना, दूसरे से पहले को लिंक करना। इसकी इज अ प्राइमरी की, बिकॉज ये चेंज नहीं हो सकती, प्राइमरी की, ठीक है ना। आईडी इज आल्सो अ प्राइमरी की। अगर मैंने नेम प्राइमरी की रख ली तो नेम कैन बी डुप्लीकेट, देयर कैन बी 3 जतिन एज वेल। एग्जांपल, योर नेम इज जतिन कुमार, देयर कैन बी 3 जतिन कुमार एज वेल, देयर विल बी एन इशू, एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आईडी बनाई है, आईडी क्या होगी, प्राइमरी की। अब इस ये टेबल जब इस टेबल से कनेक्ट होगी विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की होगी, पर इसमें कंसेप्ट होता है फॉरेन की। बहुत सारी चीजें हैं, हम जब सीक्वेंस में जाएंगे तो पढ़ेंगे। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो हर चीज हम कर रहे हैं उसका यूज क्या है, ठीक है ना। दिस इज SQL. इसके बाद जब डेटाबेस आपका बन गया, नाउ यू हैव बीन मेंटेनिंग दिस डेटाबेस फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ इयर्स, ठीक है ना। नाउ यू वांट टू विजुअलाइज हमारी सेल बढ़ रही है, कम हो रही है, एम्प्लॉय की सैलरी कितने % बढ़ी, और नंबर से पता लगा सकते हो, बट विजुअल्स आर द बेटर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। विजुअल्स आर द बेटर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके सामने ग्राफ आए तो शायद आप 15 महीनों का डाटा 1 सेकंड में डालें। Okay, so now what we will do is ID visual representation. How many of you watch the cricket matches? आप देखते हो, मैच देखते हो क्रिकेट का, देखते हो, you see. Now for example, now when the 20 over statistics that is being displayed, for example 20 hour statistics that is being displayed, how it will be displayed, एक लाइन ग्राफ के बारे में। अगर आप ऐसे बोल देते हैं एवरेज पहले
एवरेज पहले ओवर में एवरेज 15 थी, फिर 12 हुई, फिर 11 हुई, फिर 14 हुई, फिर 19 हुई, फिर 24 हो गई। आपको मतलब समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप ग्राफ देखते हो ऐसे 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 ऐसे, फिर लाइन ग्राफ, बार ग्राफ ऐसे देखते हो, इज अ बेटर representation. Okay, this is a better representation. So that is the beauty of visualization. That's the beauty of visualization. So now for visualization, we have various tools. जैसे कि Power BI, जैसे कि Tableau, जैसे कि Looker. Looker सुना है आप लोगों ने? Looker गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, GCP क्लाउड्स है, उन्होंने अपना खुद का भी लॉन्च किया, बोलते हैं Looker, Looker स्टूडियो, वो भी एक विजुअलाइजेशन टूल है। तो देयर आर मेनी विजुअलाइजेशन, ठीक है ना? A basic kind of a visualization is being provided by every application. Excel पे जाओगे तो Excel की खुद की visualization भी है, छोटी सी visualization Excel की भी है, SQL की नहीं है। अब आइए तो पता नहीं, SQL जो करेंगे ना, SQL का भी एक एडवांस वर्जन है, मतलब पोस्टग्रेस SQL है ना, तो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड SQL। SQL सेम है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट वो एक उसका अपग्रेडेड वर्जन है। मैं कोशिश करूंगा PLSQL तो एक लैंग्वेज है, माई SQL लैंग्वेज है, PLSQL लैंग्वेज, बट एक है SQL, एक है पोस्टग्रेस SQL। PLSQL भी ऐसे, पोस्टग्रेस SQL इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड SQL। मैं सबसे पहले बताऊंगा। अब नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअलाइजेशन, देयर आर वेरियस टूल्स। SQL के भी अलग अलग वर्जन है, इसके भी अलग अलग वर्जन है ना। पावर बीआई किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट। टैब्ल्यू किसका है? पहले टैब्ल्यू खुद की कंपनी थी, नाउ इट इज बीइंग परचेज्ड बाय सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप कुछ मैनेजमेंट एप्लीकेशन। उसमें क्या होता है, आप सेल्स के बंदे हो, आपने जिस बंदे को रीच आउट किया, आप उसकी एंट्री कर दोगे, एंट्री तो पूरा सीआरएम बन जाता है, ठीक है ना। तो उसने टैब्ल्यू को, नाउ टैब्ल्यू इज बीइंग परचेज्ड बाय सेल्सफोर्स, ठीक है ना। लुकर इज अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। एक्सेल इज एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये चीजें। अब नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ पाइथन? अर्लियर, well, I don't know whether you guys know, you guys don't know, there have been many programming languages. Let's say C, C++, Java, C Sharp, आपका PHP, बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है, but now Python is very famous. You guys know why? Python is the first programming language to adapt data science, data analysis, machine learning. आपको पता है व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट इज मशीन लर्निंग? पता है क्या? मैं बताता हूँ क्या है। नाउ वी हैव एन इमेंस अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा हमेशा से हुआ करता था, ओके। Organizations always have the immense amount of data. Now they used to analyze the data. Now they were analyzing the data using data analysis techniques जैसे कि mean, मैं बताऊंगा सारे, median, mode, standard deviation, line graph, bar graph, all these things they were using to analyze the data. जैसे हमने एक ग्राफ देखा, इससे डाटा को एनालाइज करना, ठीक है। तो with time, but techniques were there. जैसी टेक्निक वो करती थी, मशीन लर्निंग की टेक्निक। आपने सुना है न्यूरल नेटवर्क, या आपने सुना होगा रिग्रेशन। टेक्निक्स होती थी डेटा साइंस की शुरू से ही, शायद 1990 से टेक्निक्स थी, बट दे वर रिक्वायरिंग अ इमेंस कंप्यूटेशन पावर। वो सारी कंप्यूटेशन पावर चाहिए होती थी।
लेकिन कंप्यूटेशन पावर अवेलेबल नहीं। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड प्रोसेसिंग पावर, तो क्या हुआ कि बहुत सारा डेटा मिनट्स में एनालाइज होने लगा। द पावर ऑफ द मशीन्स इंक्रीज विद टाइम, मशीन की पावर इंक्रीज होने लगी टाइम के साथ। ठीक है, उससे क्या हुआ, द मिलियन ऑफ records can be analyzed in the glance, मतलब in the minutes. Million of data points can be analyzed in minutes. With time, algorithms that we have, neural network, your what do we call, regression, machine learning, all these things will have the capability to be fitted into this small machine. So that actually helped in high computation. With the high computation, जो डेटा था वो फटाफट से एनालाइज होने लगा। और डेटा साइंस का बेनिफिट क्या था, इट इज, जो ये डेटा थे सारे एनालिसिस थे, दीज आर डिस्क्रिप्टिव, आपका क्या प्रोसेस चल रहा है उसे डिस्क्राइब कर देते थे। बट दिस मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आर प्रिडिक्टिव। कल क्या होगा उसको भी बता देते थे। आप देखते होगे आज, द चांस ऑफ रेन टुमारो इज 52%, है ना। या फिर बोलते हैं, I'll give an example, जैसे कि ऐसे बोलते हैं कि the win probability of India tomorrow is say 80%. This is a prediction. आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्शन कर रहे हो। किस बेस पे प्रिडिक्शन करते हो, पुराने डेटा प्रिडिक्शन, डेटा एनालाइज करते हो। पहले खाली एनालिसिस होता था, अब क्या होता है, प्रिडिक्शन भी हो जाता है। द डेटा, द एल्गोरिथम्स दैट आई एम जस्ट मेंशनिंग यू, ये वाले न्यूरल नेटवर्क, ये सारे आर predictive in nature. They have capability to predict. Okay. Then all these algorithms came into existence. तो सारे एल्गोरिथम एग्जिस्टेंस में आ गए। क्यों आए सारे एग्जिस्टेंस में, क्यों आए? पहले भी थे, अब क्यों आए? कंप्यूटिंग पावर बहुत आसान हो गई। अर्लियर the scientists, they take a month to predict from a very small amount of data, because they used to apply all these algorithms by hand. There are many calculations involved, ठीक है ना। So it's very difficult for them to do the calculations. So that's the reason this came into existence. क्लियर? अब तो कोई डाउट? जितना मैंने बताया, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, ठीक है, सो दैट यू विल लर्न कि भाई कैसे कैसे चीजें चेंज हुई, ठीक है ना। जो ये विजुअलाइजेशन है ना, ये चेंज नहीं हुआ, विजुअलाइजेशन चेंज नहीं हुआ। थोड़े ग्राफ्स एक्स्ट्रा आ गए, स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स आ गए, बट मेजरली चेंज नहीं हुआ। नाउ व्हेनेवर वी रिकमेंड अ लाइन फॉर अ पर्सन, आपको किस लाइन में जाना है, ठीक है, हम कहते हैं डेटा साइंस में वो बंदा जाए या एआई में वो बंदा जाए who is adaptable to the changes। मतलब कल को चीज चेंज हो जाएगी, if you're adaptable to adapt, go with the data science, go with the AI। if you don't want to change too much, go with visualization, Power BI या Tableau या फिर जो भी उनके साथ जाओ, if you don't want to change, ठीक है ना। The salaries in Power BI and all is pretty much less as compared to AI engineer, ऐसा है। लेकिन इट्स ऑन द पर्सनल चॉइस कि किसने कहाँ पे जाना है, ठीक है। अब व्हाट इज एजेंटिक एआई?
तो एजेंटिक की आई है, ये कब आई है, कब लॉन्च हुई है, या एआई कब लॉन्च, ये जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई से पहले जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई के बाद अब एजेंटिक एआई है, एआई, ठीक है ना। तो जनरेटिव एआई कब आई है, 2022-23 में आई है, 2-3 साल पहले आई है। तो डू यू गाइस नो व्हाट इज जनरेटिव एआई? ये कोपायलट, ये जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई क्यों बोलते हैं इसको, व्हाई डू वी कॉल इट जनरेटिव एआई? दे जनरेट, ठीक है। हाउ डू दे जनरेट? They have a large database. Now when they have a large database, for example, you asked something, for example you said who will win the World Cup this time, okay, World Cup कौन जीतेगा, ठीक है ना। अब they will give you the answer, लेकिन ये तो कहीं डेटा में लिखा ही नहीं हुआ पहले में। So how generative AI is working? देखो, data from the database, हाँ, they analyze the data and predict based on the earlier data. तो now you see, इन्होंने क्या बोला कि डेटा को पुश भी किया, पुल भी किया, डेटा भी लेके आए, उसको, उसमें ये भी आइडेंटिफाई किया कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, और फिर उस पे एल्गोरिथम लगाया भी सही और आपको आउटपुट भी दिया। दिस इज जनरेटिव एआई। विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर generating not only the text, images, videos, है ना, music, which means visuals, audio, image, everything we are generating. So this is the generative AI. देखो अब how generative AI is working. जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम बताया, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क क्या आपको थोड़ा आइडिया है? मैं बताऊं आपको, तो मैं बताता हूँ हाउ आर ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। हमारे ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है? हमारे पास बहुत सारे ब्रेन में नर्व्स कनेक्शन है, ठीक है ना, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है ना, दे पास द सिग्नल टू ईच अदर, ठीक है ना। और हमारा ब्रेन कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में we have many neurons, billions of neurons that are sitting in our brain doing the calculations with the help of neurons, ठीक है ना, so that we take the quick decisions. मैं आपको अभी कहूँ कुलदीप बाहर जाओ और ना एक काम ये वाला कर, you will make many calculations. मैं नीचे जाऊंगा, धूप है, कैसे जाऊंगा, धूप है, कौन सा वे लूंगा, ऐसा क्या करूंगा कि I'll be returning as quick as possible. आपने इतने सारे डिसीजन शायद 1 मिनट में ही ले लोगे, because you have many neurons in your that have started working. उस वक्त आपका ब्रेन 100% काम किया नहीं, खाली 1% काम किया होगा, तो आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, ठीक है ना। अब जब हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं, सेम ह्यूमन की न्यूरॉन्स या नेटवर्क को मिमिक करके पाइथन पे न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं अपना खुद, और उसे डेटा देते हैं और कहते हैं कि नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस डेटा ओनली, यू हैव टू वर्क ऑन दिस डेटा ओनली, and with the help of 5 or 10 neurons it will be able to predict that data, that what will happen, what is the next occurrence. How many neurons did we put? 5 neurons. We have billions of neurons. हमारे पास इसे बोलते हैं कोशिकाएं. We have billions of neurons, but
the neural network that we have constructed is of only 5 neurons, and it is able to better predict the next occurrence in the data. Why? Because it's fully dedicated to that. If today I give you one of the tasks, ठीक है, मैंने आपको कहा कि आपको ना ये कैलकुलेशन करनी है, शायद आप कैलकुलेशन बैठ जाओगे, बट आपके दिमाग में और बहुत चीजें होंगी, टाइम, अलग चीजें, फैमिली, आई हैव टू गो आउट एंड नंबर. What if it is not getting, if it's not getting solved? ठीक है. What if it is right or wrong? But if I totally deploy 5 or 10 neurons in solving a particular problem, which will not have any of the side thoughts that we guys are having, then it will be able to solve it better. Okay. Now I'll give you an example. The species in this earth having the lowest neuron, इसकी सबसे कम न्यूरॉन है, वो कौन सी स्पीसीज है? फ्रूट फ्लाई. जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत छोटी सी मक्खी होती है, दिस वेरी स्मॉल फ्लाई which keeps on revolving over the fruit. It is a very minimal neurons to the species that we know. मैं amoeba इनकी बात नहीं कर रहा, to the species that we know. It has the lowest neuron. इसके दिमाग में सबसे कम कोशिकाएं हैं. But then also it will be able to take the decision क्या कि फ्रूट पे घूमना है और फ्रूट की स्मेल उसकी पावर है. ठीक है ना, थोड़ा फ्रूट में जाके बैठ जाना, फ्रूट पे स्मेल करना, बहुत कम न्यूरॉन है फिर भी. Why cat catches the rat? रैट के माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं कैट से कम है, तो कैट कैचेस द रैट. ठीक है ना, सारा न्यूरॉन है. अब जो हम द पॉइंट वेयर वी वर ऑन इज generative AI. Generative AI is being trained on immense amount of data with a neural network with immense amount of neurons. समझ रहे बात को आप? उसमें इतने न्यूरॉन्स डाल दिए, इतना सारा डेटा दे दिया, और उसकी reiterative deep learning, मतलब reiterative learning उसकी करती, with the help of which this generative AI has been made. This generative AI is still black box. Black box मतलब उसके पीछे कैसे काम चल रहा है हमें नहीं पता. It's still a black box. It is being created by OpenAI. OpenAI जानते हो? OpenAI ने generative AI को बनाया है. अब now what OpenAI is doing? OpenAI is supplying the API. अब सुना होगा एक API, OpenAI API क्या है, उसका पर्पस क्या है? आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आए, ठीक है, लेट्स एग्जांपल यू वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन ए, आप एक बी कंपनी का काम करते हो, आप एक सी कंपनी के साथ काम करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप आए, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या सिखाएगी? अबाउट इट्स डेटाबेस, about the culture, about the organization. आपको ABCD, आपको बोलना, आपको कैसे बैठना है, ये सब तो ऑर्गेनाइजेशन ने सिखाया ना. आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को एज इट इज एन एम्प्लॉय आप ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गए. ठीक है ना. सेम इज विद द OpenAI API. क्या हुआ? आप एज अ API हमें मिल गए. अब मैं उस API को अपने डेटा पे ट्रेन कर लूंगा और उससे अपने काम करवा लूंगा. तो जो सारे न्यूरल नेटवर्क, रिग्रेशन या सारी चीजें थी, किसी चीज की जरूरत, सबकी जरूरत खत्म हो गई. अब OpenAI की जो API मिली है आपको, उसे आज चाहे आप न्यूरल नेटवर्क बनवाओ, चाहे रिग्रेशन बनवाओ, या उसे बोलो तो खुद सोच और खुद बना, क्योंकि वो इतने डेटा पे ऑलरेडी ट्रेंड है.
समझे बात को आप? दिस इज द ब्यूटी ऑफ जनरेटिव एआई। ठीक है, तो ये क्या था हमारा जनरेटिव एआई। इसके बाद क्या आया? एजेंटिक एआई। क्या आया? एजेंटिक एआई। हमने क्या किया, हर एक काम को सॉल्व करने के लिए एक एजेंट बना दिया। जनरेटिव एआई भी क्या कर रही है, आपने बोला ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो क्या करेगी? एनालिसिस भी करेगी, डाटा भी बनाएगी, सब करेगी। पर आपने क्या किया, एक काम के लिए एक एजेंट बना दिया। जैसे हमको one a piece of work is being done by one agent, then it will supply the task to another agent, so that particular agent will be specialized in one of the task, and a super agent will be there who will be taking the decision. तो ये क्या बन गई? अब एजेंटिक एआई बन गई। अब नाउ द थिंग दैट इज देयर राइट नाउ इज एजेंटिक एआई। ठीक है, दिस इज एजेंटिक एआई। समझ आया अब तक? पूरी स्टोरी समझ आ गई आपको? कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई, क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, अब हम द टारगेट फॉर अस इज वी विल लर्न एक्सेल, वी विल लर्न SQL, वी विल लर्न पावर BI, वी विल लर्न पाइथन, वी विल लर्न जनरेटिव एआई, वी विल लर्न एजेंटिक एआई। लेकिन जब आप द टाइम यू विल कम टू जनरेटिव एआई, यू विल नॉट फाइंड एनी रिलेवेंस ऑफ द प्रीवियस थिंग्स। आपको लगेगा कि पाइथन की जरूरत क्या थी, या फिर डाटा एनालिसिस की जरूरत क्या थी, बट वाज द नीड ऑफ डाटा एनालिसिस, बिकॉज़ ये खुद ही करता है ये। तो देखो, आपको पता सबके बारे में होना चाहिए, you should be knowing about each and everything, but you should be expert about the thing that is currently going in the market, that is agentic AI. कल कोई आपसे पूछे कि what is the thing, you should be knowing, because now if you go to the industry, they will not ask you कि how will you analyze the data. Everybody will ask you what is agentic AI. के लिए तो हाँ, वो ज्वाइन कर, लेकिन कोई है नहीं आप मेरे अलावा, बीच में कोई आता है तो वो चला जाता है। ठीक है, सो नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ एजेंटिक एआई, दैट व्हेन यू लर्न जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई, जनरेटिव एआई में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। रैग सुना आपने? रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन, शायद नहीं सुना। वेक्टर डेटाबेस, फाइन ट्यूनिंग ऑफ मोड, बहुत सारी चीजें। तो what I personally suggest is if 50% of the time will spend on generative AI and agentic AI, rest 50% of the time will spend on Excel, Power BI, SQL, Python। ठीक है ना? इतना जान लेंगे इसके बारे में ताकि we will be able to work on agentic AI। आपको पाइथन आता है मान लो थोड़ा बहुत, मतलब अगर 100 है तो आपको 60-70 आता है, and if you ask ChatGPT to write a code, it will write a code for you। पता है ना आपको? It will write a code for you। So now the world is changing, you guys don't have to practice a lot, that is a beautiful part। इससे पहले जो मैंने बैच लिया था ना, तो एजेंटिक का भी लिया था, एजेंटिक से पहले जब मैं विदाउट जनरेटिव एआई जब मैंने बैच लिया था, तब इशू क्या था? People were very much focused on practicing Python। पांडास, मेरे को सर पांडास में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को नंपाई में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एल्गोरिथम नहीं बन रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। लेकिन अब विद टाइम क्या हुआ है कि सब चीजें फेड हो गई है। आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप चैट जीपीटी को बोलो, वो आपको कोड लिख के दे देता है ना? अब देखो, द थिंग्स आर दैट मच इजी कि आपको, जैसे पहले when you need to get a water, you have to dig a well, आपको कुआं खोदना पड़ता था। Now the water is easily being supplied at our home, so we don't need to learn how to dig the well, but how beautifully we will use the water for the better purposes is the next demand of the hour।
कि अब जो डिमांड है वो क्या है कि आपको कैसी चीजों को यूज करना है और यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो my suggestion will be that in this course we will go with the Excel, we will go with this one is a lab. So this is the एजेंटिक एआई, मतलब जो ये एजेंटिक हम करेंगे इसकी ब्यूटी क्या है कि ना इसके अंदर आपको बाकी सारी चीजें हैं उसको करने के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जानना है, इफ यू वांट टू नो हाउ टू अप्लाई डू दिस थिंग इन एक्सेल, if you know how to open the Excel, if you know if you know how to open the Excel, then you will then you know. Yeah, sure, definitely. Then PCs, 5 laptops. Okay, now if you know like how to use the Excel or how to open the Excel, Excel में कोई टास्क परफॉर्म करना मुश्किल नहीं है। Okay, so how to तो मतलब if you know how to do that, then doing the things are easy, ठीक है ना। तो इसलिए one of the question will be how to use the agentic AI, how to use the cloud। आपके शायद कोर्स में क्लाउड होगा कि नहीं होगा, लेकिन है कौन सा क्लाउड है, AWS या फिर GCP या कोई भी, ठीक है ना। तो विदाउट क्लाउड ये एजेंटिक AI फिजिबल भी नहीं है, ठीक है ना। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि इनका एक फ्लेवर लेते हैं सबका, एक्सेल का, इसका, और मेजर द टाइम विल स्पेंड इन जनरेटिव AI एंड एजेंटिक AI। आपको पता सबका हो, बट एक्सपर्ट विल बी, यू विल बी द एक्सपर्ट इन द थिंग दैट यू हैव टू डू। कंसेप्ट सारे, लेकिन ना देखो मेरे को तो अच्छा लगेगा कि आप प्रैक्टिस भी करो, सब करो, पर मैं आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको आज की डेट में प्रैक्टिस करनी है तो आप एजेंटिक या जनरेटिव AI कैसे यूज करना है वो करो, ठीक है। क्योंकि अब प्रैक्टिस करके एक कोड को प्राइम नंबर बना के, ये बना के, वो बना के, पहले हम ये ऐसा बहुत किया करते थे, ठीक है। हाँ, ऐसा अब से 3 साल पहले तक भी मैं बैचेज लेता था, तो वी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम ऑफ अ प्राइम नंबर, वो पिरामिड बनाना, बहुत सारी चीजें बनानी, ठीक है ना। लेकिन अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, पाइथन करते हैं, इसमें एल्गोरिदम कैसे यूज करने हैं ये करते हैं, एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं ये समझ लेते हैं सारे, कुछ एल्गोरिदम्स की वर्किंग देख लेते हैं कैसे काम करता है। सीक्वल पूरा अच्छी, सीक्वल थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि सीक्वल जिससे जो करेगा पावर बीआई करेगा, पावर बीआई भी देख लेते हैं, और फिर एजेंटिक में मूव होते हैं, ठीक है ना। तो मैं शुरू करूंगा विद सम ऑफ द कंसेप्ट्स इन एक्सेल एंड सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स जो डेटा एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आई विल गो विद योर पेस। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आई एम फाइन टू रिपीट, क्योंकि अगर आप लोगों को बीच में समझ नहीं आता तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं अगले कंसेप्ट पे चला जाऊं और पिछले कंसेप्ट ना पता हो, है ना। वैसे तो अगर हम एजेंटिक भी जा रहे हैं तो पिछले कंसेप्ट अगर आपको सिर्फ आइडिया भी है ना, मैं आपसे पूछूं ये क्या होता है और आप मेरे को बिना करे बता पाओगे क्या होता है, फाइन फाइन। ये इंडस्ट्री चली ऐसे रही है आजकल, ठीक है ना। ऐसे हम प्रोग्रेस करेंगे। एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट कुछ भी हो तो पूछो मेरे से, यू कैन आस्क मी। यू गाइस आर कंफर्टेबल अगर मैं इंग्लिश बात करूं? इंग्लिश में बात करने में प्रॉब्लम तो नहीं? ये कहो तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, आई एम फाइन विद बोथ, ठीक है, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? नहीं, ठीक है।
तो ऐसे शुरू करेंगे हम, ठीक है। बीच में किसी एक दिन शायद मैं छुट्टी पे रहूंगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन हम कल से स्टार्ट करते हैं एक्सेल को देखना, बेसिक एक्सेल। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 1 दिन या 2 दिन दूंगा आपको, एक्सेल अच्छी तरह समझा दूंगा कैसे एक्सेल काम करता है, एक्सेल क्या होता है, ठीक है ना, फॉर्मूले कैसे लगते हैं, पिवट कैसे लगती है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। बेसिक है मतलब अगर आपको आपका कैरिकुलम में जो भी है, whatever is there in your curriculum, I'll explain, ठीक है ना। एक्सेल में आपको इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से बता दूंगा कि इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, ठीक है ना। मैं पिछले 12-13 साल से इसी लाइन में, ठीक है ना। तो मैं आपको आपका बेसिक्स एक्सेल मतलब एक्सेल बता दूंगा आपको। एक्सेल में आपको मैक्रोज जानने की जरूरत नहीं है कि मैक्रोज कैसे लिखने हैं, वीबीए विजुअल बेसिक लैंग्वेज कैसे लिखनी है, बट एक्सेल कैसे जानना है आपको ये जरूरी है। पावर क्वेरीज हो गई, या एक्सेल के अंदर आपने पिवट कैसे बनानी है, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सम इफ, काउंट इफ, ये कैसे करना है। एक्सेल में आपने डेटा एनालिसिस कैसे करना है, डेटा एनालिसिस जैसे कि आपने the concept that I will telling you, like histogram, standard deviation, mean, median, mode. My major focus will be on Excel, is on the points that will be used in your data analysis, data science, machine learning, ठीक है ना। The prediction that is basically happening with agent or the generative AI, okay, is on the basis of mean. Whenever we say, it usually says that the mean score has changed from this to this. If you won't be able to understand, then there's no point. Okay, the major criteria will be to get you, even power query जो आप कह रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आती है। If you ask ChatGPT to write a power query, it will write a power query for you. Okay, बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आती है। But the major thing that is being used is how to use the Excel with the help of LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। जो एजेंटी की बात करो ना, इसके थ्रू एक्सेल को कैसे यूज करना है। मतलब द थिंग्स दैट यू लर्न इन एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई इज हाउ टू यूज एक्सेल वाया LLM, how to use PowerPoints, how to use all the MS Office, how to use the immense amount of data with the help of LLM, large language models. Large language model क्या है? Do you know what is this? LLM. जो ये चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी is a LLM only, large language model, which means it has been trained on an immense amount of data. It's a large language model. Now for example, today you guys are starting your company, you have a very small data, ठीक है ना, small data, so you can train your SML, small SLM, small language model. जैसे कि large language model है ना, chat GPT is a large language model. In the same way you can make your SLM, small language model. The benefit is the size. If you will make a large language model, you will need the immense amount of data and the processing that we cannot afford at this point of time, because even a single cloud instance will be able to absorb it. So now when we go in the class, we will also see how to make a small language model. Okay. The effective points that you will write in your resume will be, you have made your own SLM. ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि आपने अपना खुद का एक मॉडल बना रखा हो, ताकि आप कल के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक मॉडल बना सको। दिस इज अ थिंग दैट इज इन डिमांड। अब आज की डेट में कोई आपको ऐसे नहीं कहेगा कि मेरे को प्रेडिक्शन के लिए एक एल्गोरिथम बना के दो, तो रेडीमेड अवेलेबल है। आपने, अगर मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, मैं उसको एक डेटा एक्सेल फाइल देता हूँ, मैं से बोलता हूँ इसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, एक डेटा बड़ा डेटा देता हूँ, उसमें नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी वो बता देगा आपको, है ना। तो थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन अ क्लिक ऑफ अ माउस,
why you want to do many things for that now at this point of time. The beauty is how you will use the LLM for the Excel, for the data, for your organization, है ना. आप LLM को फाइन ट्यून करोगे with your on your data. इससे बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, और इससे निकल के आता है SLM, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल. ये सब चीजों पे ध्यान देंगे ज्यादा, ठीक है ना. दैट इज द मेन क्रक्स नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना. ये चीज सीखोगे, इंडस्ट्री में डिमांड बनेगी. आई विल गिव यू एक प्रैक्टिकल एग्जांपल. आज की डेट पे जाना, इंटरनेट पे लिखना, आई नो डेटा साइंस, आई नो मशीन लर्निंग, आई नीड अ जॉब इन गुड़गांव. कितनी नौकरी निकल के आती है? 20-25 with a salary more than say 10 lakhs per annum, 20 lakh per annum. कितनी नौकरी निकल के आती है? सेम चीज आप लिखना कि आई नो एजेंटिक AI, आई नो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, आई नो फाइन ट्यूनिंग, आई नीड अ सैलरी मोर देन 30 lakhs. कितनी नौकरी निकल के आती है? यहाँ पे 15 बोलना, वहां पे 30 बोलना. Naukri.com पे यू विल बी एबल टू सी किस पे कितनी सैलरी निकल के आती है. जाओ, ठीक है ना. तो यू विल बी गोइंग इनटू द फील्ड जिसकी डिमांड है ना. बेकार में आज की डेट में आप कोई पुरानी टेक्नोलॉजी सीख लो, मेथोडोलॉजी सीख लो और उसमें लगे रहो पूरी तरह से, तो दैट विल बी ऑफ नो यूज. 15 नौकरियां होंगी और 15 लाख एप्लीकेंट्स होंगे, ये सब करके बैठे हैं. यहाँ 30 नौकरियां होंगी और 3000 एप्लीकेंट होंगे. 30 नौकरी और 30,000 एप्लीकेंट वाले में यहाँ नौकरी, बल्कि यहाँ पे 300 होंगी, एप्लीकेंट 3000 होंगे. चांस है कि आपके पास 10 इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे वहाँ पे चांस है 150 में से एक क्लियर होगा. 150 में से ह्यूमन टेंडेंसी इज आफ्टर 10-15 इंटरव्यूज, ह्यूमन हैज अ टेंडेंसी दैट ह्यूमन विल लूज द इंटरेस्ट. हमारा इंटरेस्ट चला जाता है वहां से, ठीक है ना. हम कहते हैं कि यहाँ से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, दिस इज ऑफ नो यूज, ठीक है ना. तो दिस इज द क्रक्स, ठीक है. एनी क्वेश्चंस और विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो फ्रेश अप विद द Excel. I will also see the curriculum that you guys have and will start with that. ठीक है ना. Tomorrow same time 3 PM. Fine. ये करो तो आज स्टार्ट करो. चलो कल करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना. तो आप 6 बजे तक बोलते हैं कि 6 बोला था? 6 बोला था, अच्छा मेरे को 5 बोला था. अच्छा चलो ठीक है, मैं आज शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना. ओके, एक काम करते हैं. ये प्रोजेक्टर पे लग जाएगा क्या? लग जाएगा, ठीक है. एक सेकंड में, चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो, ठीक है ना. फिर मैं एक बार शुरू करते हैं 5 मिनट बाद, ठीक है ना. एक्सेल के साथ और
ये प्रोजेक्टर चला गया नीचे? चल रहा? आप में से किसी का लैपटॉप है क्या? हाँ, मेरे को लैपटॉप दिखा तो मैं आप वाले से ज्वाइन करता हूँ। मेरे में कल वाला वर्जन दूसरा है। इस पे लगाने है रिकॉर्डिंग। इस पे रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं इस पे वो कर लेता हूँ। अच्छा, प्रोजेक्टर नहीं है तो एक मैं पूछता हूँ, प्रोजेक्टर चलता है तो। कुछ फॉर्मूलेस है इसमें से एक अच्छा अच्छा, नहीं मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। मैं कहते प्रोजेक्टर चलेगा? आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है? हाँ, वो चार्ज हो रहा है। नहीं, ये नहीं हो रहा चार्ज। तो मैं चलिए उसका पावर तो डाउन है। चार्जिंग स्टार्ट हो? नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है, बंद हो गया। स्टार्ट वो सर आज ऐसे ही कर लूं क्या फिर लैपटॉप पे ऐसे? एक मिनट रुको। वो आ रहा है। हाँ, इधर डिस्प्ले आएगा ना तो आप इधर आ जाओ इस वाले शेयर। हाँ, मैं इसको रख देता हूँ। मैं करूँ ये वाला ऐसे ये हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा था थोड़ा आसपास हुआ। थोड़ा सा आगे कर दो ना, छोटा हो जाएगा। मैं पीछे ना लग।
आपको एक्सेल पढ़नी है? नहीं पढ़नी? अब इससे पढ़ाएंगे पढ़ जाए। डेटा डेटा एनालिटिक्स समझ आते हैं। अच्छा डेटा एनालिटिक्स क्या होता है तो तुम बताओ। बता तो दो। अच्छा कौन कौन से कोर्सेज होते हैं तुम बताओ। कौन कौन से कोर्सेज ना सुन के इसको भी पता चल गया। अरे पापा क्या पढ़ा रहे थे? साइंस का ठीक है लाइट ऑफ करो। ठीक है तो आप लोगों को विजिबल होना चाहिए। ठीक है देखो कॉपी है एक्सेल के अंदर when we normally say about Excel, okay, so this is the worksheet. वर्कबुक तो ऐसे इंसर्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेजर इंटरेस्ट ये सब चीजें हमारे पास हैं, जैसे हम डेटा एनालाइज करते हैं, जैसे मैंने लिखा कि अजय जय 10, ठीक है ना, जे ABC 20, ओके, TF 30, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसको किसी भी तरह से एनालाइज करना, कोई भी तरह का डेटा हो सकता है कि दिस इज द नेम, दिस इज स्कोर, ठीक है ना। So whatever the name, whatever the score has been, this Excel is used to store the data and to analyze it and to pictorially represent the data, ठीक है ना। अब ये तो जो मैंने डाटा को ऐसे लिखा, ये है डेटा स्टोरेज, तब सबको पता ही होगा, ठीक है ना, इतना तो पता ही है, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस, फॉर एग्जांपल डेटा एनालाइज करना, जैसे हमने ABC दोबारा लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो ये आपको कौन सी वैल्यू आएगी, 20 आनी चाहिए, तो आप डेटा को VLOOKUP कर सकते हो। ये सारी चीज पता है आपको, VLOOKUP XLOOKUP, ये पता है कि नहीं, आइडिया है, पता है, पता है आपको भी पता है बेसिक चीजें, VLOOKUP क्या होता है। मैं चाहता हूँ आपको ऐसे बताऊं जो असली में इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, जैसे कि अगर आप कोई भी चीज ना हो तो पूछ लेना, जैसे कि सबसे मेन थिंग for data in Excel, for the people who are statisticians, the people who are data science, is the one that I'm telling you right now. I go to Excel, I go to more, I go to options, ठीक है ना। there is a option that is add-ins. add-ins पे जाओगे, analysis toolpack, analysis toolpack, आप इसे बोलते हो गो जरूर करना, नहीं तो होगा नहीं। इसके अंदर एनालिसिस टूल पैक को आपने डाल लेना है, ठीक है। जैसे आप डालोगे तो आपको डेटा के अंदर डेटा एनालिसिस नजर आएगा, पहले नहीं था ये, डेटा के अंदर डेटा एनालिसिस नजर आएगा, यू विल सी डेटा एनालिसिस टूल, if you click over there, these are the statistical things which are needed for data science, they needed for data science, जैसे कि regression, जैसे कि हिस्टोग्राम, जैसे कि मूविंग एवरेज, जैसे कि T-टेस्ट, ये सब चीजें मतलब मैंने इसके यू एक्सेल, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि कोवेरिएंस, जैसे कि कोरिलेशन, जैसे कि
अनोवा। व्हेन आई से एक्सेल आई मीन कि मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊं, ठीक है ना। ये चीजें हैं जो इंडस्ट्री में पूछी जाती हैं। इफ यू टुमारो गो टू anywhere and if you say I know VLOOKUP, I know HLOOKUP, I know Power Query, I know these are very technology तो पहले आज से शायद 20 साल पहले यूज हुआ करते थे। ये जो चीजें बता रहा हूँ ये वो चीजें हैं that is the base of statistics, of data science, of machine learning, of everything, ठीक है ना। तो जब मैं बोलता हूँ एक्सेल, फॉर मी एक्सेल इज बेसिकली डेटा एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा आपका कैरिकुलम क्या है एक्सेल का मेरे को नहीं पता, जो भी है कैरिकुलम है आपके पास, मेरे को दिखा दो इनको क्या कैरिकुलम है, इनको देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं एक एक करके पूछते जाऊंगा, अगर आपको पता होंगी ठीक है, नहीं तो वो चीजें मैं पिक करूंगा। जो सबको पता होंगी, जो सबको नहीं पता होंगी, किसी एक को भी नहीं पता होगी, दो थिंग्स हेल्प। ये वाला है लैंचिंग क्लाउड, ये सब चीजें इसमें एक्सेल कहाँ पे है। चलो फिर मैं एक्सेल को ले चुका तो मतलब टॉपिक्स तो नहीं दे रखे ना। वो क्या है, ये एक्सेल है, इसके अंदर ये डेटा है, इसके अंदर ये सारी चीजें लगती हैं। कैसे क्या है आपको इसके बारे में एबीसी में नहीं पता, मैं आपको इनके बारे में बताना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। बेसिक पहले इससे पहले जैसे कि इफ यू वांट टू से जतिन, you will be knowing what is J, what is A, what is P, ABC you have to know. Now I start telling you about ABC. उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल the main concept that we have to know the statistics is average, that is known as mean, फिर median, फिर deviation, फिर normal curve, फिर हिस्टोग्राम, ठीक है। After, हाँ हाँ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस ओनली, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। ऐसे स्क्वायर ऑफ एसडी इज वेरिएंस, ये बताऊंगा कि होता क्या है, ठीक है ना। कोरिलेशन, कोवेरिएंस, ठीक है। उसके दौरान मैं आपको टी टेस्ट, जी टेस्ट, नोवा, ये तीनों हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, you can call it as hypothesis testing। इसके बाद आएंगे फिर हम रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद still here it is possible in Excel। इससे आगे कंसेप्ट पे जाएंगे जैसे कि न्यूरल नेटवर्क, एसवीएम, डिसीजन ट्रीज, ये सारे एक्सेल में विजिबल नहीं है, तो इसके लिए we need to know the Python। और बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसके आगे, केएनएन एल्गोरिथम है ना, और फिर सुने आपने शायद सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग, बहुत सारी चीजें नेव बेस्ड थ्योरम, बहुत सारी चीजें, सबके बारे में हम करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आज हम देखते हैं इन तीन चीजों, ठीक है ना। देखो
एवरेज तुमको पता होगा, एवरेज पता है, एवरेज क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नाउ द टारगेट दैट हैज बीन गिवन टू मी is to go to a company and to assess is the salary every employee is getting in this organization. What salary every employee is getting in the organization is my target. मैं कंपनी में गया, कंपनी का नाम है एबीसी। मैंने एम्प्लॉय ए से पूछा व्हाट इज सैलरी, ही सेड माय सैलरी इज 50,000। ठीक है। सैलरी बी से पूछा, उसने कहा मेरी सैलरी इज 55,000। सी से पूछा, उसने कहा मेरी सैलरी इज 70,000। डी से पूछा, उसने कहा मेरी सैलरी इज 90,000। इतने रहते हैं। ठीक है। नाउ आई हैव टू गो बैक इन माय कंपनी, आई नीड टू टेल what is the average salary every employee is getting। क्या होता है, इन सब का सम डिवाइड बाय काउंट। वी आर टेकिंग फॉर 4 पीपल, 4 बंदों के ले रही हैं तो 4 को डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू सम ठीक है ना। और काउंट क्या है इसका, ये तो हो गया सम। ये सम निकाल, ऐसे तो आता होगा ना एक्सेल पे सम निकालना। फिर दूसरा क्या है, काउंट। काउंट कैसे निकालते हैं, काउंट कर लो और यानी कि इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस इज द एवरेज। तो हमने क्या कहा, अभी तो हो गया एवरेज। हाँ इज इक्वल टू एवरेज। उनको बताना था इनको कि एवरेज कैसे निकलती है। ठीक है। अनदर मेथड इज एवरेज करना है तो इज इक्वल टू एवरेज, दिस इज नोन एज मीन। मीन इज द एवरेज। तो आपने बोला कि एवरेज सैलरी इज हाउ मच, इज हाउ मच 60,250। क्लियर। आपने बोला कि एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय 66,200। नाउ you then you have been checking the salary। ठीक है ना। अब क्या है, दूसरी वैल्यू थी मीडियन। क्या वैल्यू है, मीडियन। मीडियन क्या होती है, मिडल वैल्यू। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय और था ई, जिसकी सैलरी थी मान लो 40,000। ठीक है। एवरेज हमारे पास 61,000। तो मीडियन, मीडियन इज द मिडल वैल्यू। आप इनको क्या कर लोगे, डेटा को पहले कैसे, डेटा सॉर्ट बाय एबीसी से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है ना। अब इसमें हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर, 5। मिडल वैल्यू इज 55,000। so middle value is median। so if I say is equal to median of this will be 55,000। so this is median। both are representing the central point। ठीक है ना। both are representing the central point। मीन भी मीडियन भी। अच्छा एक और भी होता है जिसमें मोड। whenever we need to analyze the data we need 3 things। one is measure of central tendency।
measure of dispersion, measure of range. When we have these three things, which means we know about the data. Measure of central tendency is mean, median and mode. ठीक है? Measure of dispersion is standard deviation and variance. Measure of central tendency ये वाला है yellow is this one. Measure of dispersion is green, which is these two. Third is measure of range. Measure of range. इसे बोलते हैं हम, तो इसका नाम ही रेंज है, which is maximum minus minimum. Is the range. Is the measure of spread. अभी दिखाता हूँ. अभी spread. परसेंटाइल अलग चीज है, इसमें नहीं आता. 95 परसेंटाइल, 400 परसेंटाइल वो अलग है. अभी करते हैं परसेंटाइल बताऊंगा. ठीक है ना? देखो अब हमने क्या निकाला, मीन, फिर निकाला मीडियन, फिर निकालते हैं हम. देखो मीन आया 61,000, मीडियन आया 55,000. अब निकलते हैं मोड. मोड का क्या मतलब होता है, मान लो इसकी सैलरी भी थी एग्जाम्पल, ठीक है ना. अब तीसरी वैल्यू क्या ली मैंने, मोड. मोड होता है हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू. इस डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, 50,000. इज कमिंग. मोड क्या होगा, मोड दिस इज मोड. तो अब अगर मैं if I put this data 40, 50, 60, 70, 90, ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज 60, 50 एंड 50 ना. इसका क्या मतलब है कि डेटा कहीं ना कहीं 50-60,000 के बीच में ऑन एन एवरेज वेरी करता है ना. अब ये क्लियर हुआ, जब हम 60,000 बोल रहे थे तो वो सही रिप्रेजेंटेशन पूरी नहीं थी, पर 50 भी थी. ठीक है ना. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नियर टू 50 and 60,000. ठीक है ना. अब लेकिन when I have been interviewing the people कि आपकी सैलरी क्या है, when I have been asking the people, I met with the CEO of the company and he said my salary is say ठीक है. अब क्या हुआ मीन को, मीन तो क्या हो गया, मीन क्या हुआ, M3 से मैंने कहा तो देखिए M3 से M8 तक रेंज है. यहाँ भी 8 लेता हूँ, यहाँ भी M8 लेता हूँ. मीन को क्या हुआ, चेंज हो गया. मीडियन क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ. और मोड क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ. अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो तीन मैट्रिक थी, मीन, मीडियन, मोड, जब क्या देखा आपने, दिस इज आउटलायर. हर एम्प्लॉय की सैलरी तो इतनी नहीं है ना, 10 लाख 1 करोड़ जो भी हर एम्प्लॉय की सैलरी तो नहीं है ना, व्हिच मींस
mean gets influenced by the outliers. Mean outliers से influence हो जाता है, मीडियन आउटलायर से इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो जिस डेटा में आपका मीन और मीडियन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि इस डेटा में आउटलायर्स हैं। जैसे कि एक वैल्यू जो बहुत ज्यादा हो गई या बहुत कम हो गई, वो आउटलायर है। आज की डेट में मैं कहूँ आपकी एज क्या है, आपने कहा मेरी एज है 25, आपने कहा मेरी एज है 30, आपने कहा मेरी एज है 26 फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मेरी एज है 80, मैं आउटलायर हो गया ना। तो मैं आप लोगों से, या फिर अभी हम बच्चा क्लास में आया था, अगर आज की डेट में सबको मैं बताऊं तो शायद विनीत भी समझ जाए, आप भी समझ जाओ, मैं बच्चा नहीं समझेगा, आउटलायर। तो ये डेटा जो है ये आउटलायर। तो जिस डेटा में अब आपके पास अगर डेटा अवेलेबल ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं डेटा का कलर ही चेंज कर देता हूँ, डेटा का चेंज हो, डेटा का कलर में चेंज करता हूँ मान लो, ठीक है, आपको खाली यही वैल्यू देता हूँ। बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन आप इसको देख के बोलोगे कि डेटा हैज अ मोड कैसे डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी कैसे बता रहे हैं, एवरेज और मीडियन का कुछ बता। देखो देखो आगे बात बिल्कुल ठीक है, ये दो प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन हैं, ये थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपको जब भी आप लोगों की सैलरी लोगे रियल लाइफ में, आपने 50,000 बंदे की सैलरी ली, तो आप देखोगे मोड की रोबस्ट वैल्यू निकल के आती है। जब इस डेटा को लेते हो ना, तो इस डेटा को आप एडजस्ट भी करते हो, जैसे किसी की सैलरी 49 आई, किसी की सैलरी 51 आएगी, तो आपकी बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, आप उसको 1000 पे राउंड ऑफ करोगे, मोड एक सही रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ठीक है ना। व्हेन यू आर टेकिंग अ डेटा फॉर 5 लाख एम्प्लॉइज, 6 लाख एम्प्लॉइज, 1 लाख एम्प्लॉइज इन द कंपनी, ठीक है ना, तो आप देखोगे बहुतों की सैलरी, मोड एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। जब मान लो आप 1 लाख बंदों की सैलरी इकट्ठी कर रहे हो, एक आपको टेस्ट दिखाता हूँ, चलो आपकी बात है ना मोड में, मैंने कहा इज इक्वल टू रेंट बिटवीन सैलरी 10,000 से लेके 1 लाख के बीच, ठीक है ना। अब मैंने इसकी एंट्रीज, मैं इसका देखो मोड लेता जाता हूँ, मोड ऑफ कहां तक आया हूँ 200 239 तक, मोड क्या आ रहा है अभी, नहीं क्योंकि वैल्यू नहीं है, नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। कितनी वैल्यू ली है मैंने टोटल अभी, अराउंड 44 वैल्यू ली है ना। 230 हाँ, जिसको मैं राउंड करूंगा, तो इसको मैं राउंड करूंगा, तो वाली आ गई, तो गया ही नहीं मैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ इज इक्वल टू राउंड, ठीक है ना, बाय 1000 दिया। अच्छा मैंने कहा इसको फॉर एग्जाम्पल 41,000 है, इसको मैं 40,000 कर दूँ, ऐसा शायद राउंड होता होगा, नहीं पता। हाँ, तो इसमें से वैल्यू करना, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने कहा इसको राउंड होता होगा कुछ चक्कर कि मैंने इसे बोला कि इसको करो, मैं इसको बोलता हूँ राउंड, मैंने देखो और भी मेरे पास सारी वैल्यूज कितनी है, किससे डिवाइड हो रही है, 10,000 की रेंज में है ना, यानी इक्वल टू ये डिवाइड बाय
10,000 करा, 1 पॉइंट ऐसे कुछ आ गया, मैंने इसको बोला इक्वल टू काउंट डेज बाय 2 डिजिट्स टू ये 2 डिजिट तक राउंड हो गया, समझा आपको? ये दूसरे तरीका है इसको राउंड करने का, ठीक है। अब इसका मोड लो, आप इसका मोड लो, अब देखो कितना सही मोड आता है इसका, बहुत सारी वैल्यू जाएंगी। 48,000, अब 48,000 कितनी बार आ रहा है ये देखना है आपने। तो आप देखो, मतलब ये बाई मॉडल मल्टी मॉडल होगा, मल्टी मॉडल समझते हो, मल्टीपल वैल्यूज का मोड 48 आ रहा होगा। 2 वैल्यू का मोड अगर 48 आ रहा है तो बाई मॉडल डाटा है। डाटा कैसा है? बाई मॉडल। डाटा की शेप कैसे आएगी? मॉडल को अगर प्लॉट करोगे, डाटा की शेप आएगी बाई मॉडल हो गया। मल्टी मॉडल में क्या होगा? मल्टी मॉडल वाली शेप आ जाएगी। तो ये कौन सा डाटा है? 48,000 मल्टी मॉडल डाटा है सब होगा। अब देखो मल्टी मॉडल 48,000 वैल्यू बहुत बार निकलेगी। एक तो ये देखिए पहले देख लीजिए, ठीक है ना, बहुत बार निकलेगी। तो हम यहाँ चलते हैं, हेलो बढ़िया, बताओ मेरी बोलो। वो कोशिश करता है कि जब तक रिपीट ना हो वो एक्सीलरेट करता है। तो अगर रिपीट नहीं होगी वैल्यू तो बहुत ही अच्छा उसको राउंड ऑफ करेंगे तब वो सेम वैल्यू बनेगी। अच्छा बुक से वैल्यू वो मैं कर चुकी हूँ। जिंदगी के लिए कर चुके हो। ज्यादा नहीं।
मुझे नहीं देखना। ठीक है, तो ये समझ आया आपको? कोई डाउट अब तक? किसी को डाउट? देखो, तो ये तो हो गया ना। अब आज छोटे डाटा पे जो हम बात कर रहे हैं ना, तो मोड इज नॉट अ राइट रिप्रेजेंटेशन, बट इफ वी टॉक अबाउट बिग डाटा, तो मोड इज आल्सो गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल डाटा। सेकेंडरी मेजर, जब हम एवरेज पे मीन मीडियन मोड देखते हैं तो क्या आपको कुछ क्राइटेरिया जो बताता है कि आउटलायर है? अगर आपकी मीन और मीडियन की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है, तो आपके डाटा में आउटलायर। ये वैल्यू ऐसे होती 60,000 65,000, तो ये 60,000 है और ये आपकी इसी के आसपास होती है 60 70 या 60 50, तो छोटे मोटे आउटलायर तो डाटा में होंगे, वो चलते हैं। वो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर मीन और मीडियन के बीच में बहुत डिफरेंस दिख रहा है, आपको अगर इसमें डाटा ना ही दिखाऊं मैं, फॉर एग्जाम्पल, अब इतने सारे डाटा आप कहाँ देखोगे? नहीं देख सकते। पर आपने सिंपल जैसे बोला इज इक्वल टू मीन सॉरी एवरेज of this or is equal to median of this। तो आप देख के बता सकते हो कि डेटा में बहुत ज्यादा आउटलायर नहीं है, ठीक है ना। अब आपने सारे डेटा पॉइंट पर नहीं देखे ना, मान लो इसमें से एक वैल्यू ऐसा ना ओके ऐसी होती तो कहते था आउटलायर है भाई, है ना। और या फिर इसको और चेंज कर देता हूँ मैं, और चेंज करता हूँ मान लो मैं, तो बहुत सारे आउटलायर है ना। तो इस यही से पता चलता है कि डाटा में आउटलायर है कि नहीं है। स्टैटिस्टिशियंस पूरा डाटा नहीं देखते, हमेशा कुछ फिगर देखते हैं, उसे बताता है कि डाटा कैसे है। जब आप when you learn about standard deviation, variance, range as well ना, तो आप खाली ये 4-5 मैट्रिक देके बता दो कि डाटा कैसा है। पहली चीज तो आपको ये आनी चाहिए कि डाटा कैसा है, वो देखना। अभी हम लोग डाटा के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। एक्सेल में जैसे अभी मीन होता है, मीन भी एक फंक्शन, एवरेज भी एक फंक्शन, लेकिन एवरेज सही नहीं देता, मीन कुछ अलग ही आउटपुट देता है। देखो क्या है कि ना, मीन क्या करता है, मीन ना उसको डिनोमिनेटर को चेंज करता है। जैसे m इक्वल टू MEAN, पहली बात तो यहाँ पे ये देखो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऐसे मूविंग एवरेज बहुत सारे होते हैं, ये सब अलग अलग मीन होते हैं, लेकिन ये सिंपल मीन नहीं, हम सिंपल मीन निकाल रहे हैं। इनके अलग फंक्शन होते हैं, इसमें किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, वेटेड मीन होते हैं सारे, वेटेड मीन। तो मान लो आपने कहा एक एवरेज आपने ली 5 तारीख को, एक 6 तारीख को, एक 7 तारीख को। 5 तारीख को बारिश हो गई थी, तो आइसक्रीम की सेल का वो मीन का वेट आप कम कर दोगे, तो उस दिन में बारिश थी तो वैसे लोग कम लेंगे, तो वो वेटेड मीन हो जाएगा। तो ये मीन्स को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, हार्मोनिक मीन,
जियो मीन, ट्रिम मीन, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि मीन आप हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो इज द सिंपल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना? अच्छा देखो, अब आपने देखा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अब हम देखते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं आपको ऐसे कैसे समझाऊं स्टैंडर्ड डेविएशन की ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ कोई चीज है, अगर मेरे पास पीस ऑफ पेपर है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसे देख मैं कार्ड नंबर कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला कि पीस ऑफ पेपर लो, उसकी बॉल बनाओ, उसकी दीवार फेंको। आपने पहली बार फेंका तो सकता है वो उधर जाए, दूसरे फेंकोगे तो सकता है उसे थोड़ा नीचे जाए। नाउ इन दिस सिचुएशन द पर्सन इज सेम, द डिस्टेंस इज सेम, everything is same, but then also there is a variation। ये वेरिएशन क्यों है? बिकॉज डेटा में खुद में एक प्रॉपर्टी है कि वो वेरी करता है। आपने आज एक केक बनाया, उतने उसमें amount of flour you put, the same amount of sugar you put, the same amount of soda you put the same amount of salt you put, and the butter. Tomorrow as well, same other things you put. Will the taste of the cake will be same? Data for everything that we have in this universe has a variation. To have variation, so there is various noise factors, environment कैसा था, weather कैसा था, आपका mood कैसा था, which are not measurable, which is the cause of the variation. तो वेरिएशन को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि डेटा है मेरे पास, मैं डेटा सिंपल से देता हूँ। ठीक है, मैं लिया, देखो मैं इसका आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं भी वैसे का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एक्स बार माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय इसका स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। तो फॉर्मूला होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल। आपने यहाँ पे गूगल पे गए, आपने बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला, आपको यही फॉर्मूला देगा। ये इमेज पे जाओगे देखते हैं ये बात, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस, इसका अंडर रूट किया, अंडर रूट नहीं करोगे तो वेरिएशन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं, और आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना। Distance of every data point from the mean इज द डेविएशन, इज द वेरिएशन। मैंने आपको दिखाता हूँ, तो ये डेटा था हमारे पास, जैसे 1000 2000 3000 4000 6000 ऐसे। आपने इसका क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इसको बोलते हैं एक्स। क्या है? एक्स। अब एक होता है एक्स बार। एक्स बार क्या होता है? मीन। मीन जो हमने निकाला वो क्या होगा? एक्स बार, यानी कि इज इक्वल टू एवरेज 14,000 इज द मीन। अब मैंने कहा एक्स माइनस एक्स, बार, एक्स माइनस एक्स बार, ये सॉरी ये एक्स माइनस एक्स बार है, एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर
इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये एक्स माइनस एक्स बार। देखो क्या निकाल रहा हूं मैं, डेरिवेशन कैसे निकलता है, सिग्मा की सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1 का स्क्वायर। कहीं पे आपको ये ऐसा दिखेगा, कहीं पे ये ऐसा दिखेगा, मैं डिफरेंस बताऊंगा क्या होगा, ठीक है ना? ले रहे हैं आप? अभी क्या है, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं कि हमारे डेटा में कितनी वेरिएशन है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अच्छे समझ नहीं आया आपको, जैसे मैंने बताया मेरे को कितना दूर है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसकी जरूरत क्या है, why do we need standard deviation? Okay. You are a teacher of a class, आप एक क्लास के टीचर, हर बच्चे के मार्क्स आए, एवरी चाइल्ड स्कोर सम मार्क्स 50, 60, 55, 75, 85, 90, 95, 60, ऐसे तो you're also a teacher, you're also a teacher. Now I'll ask you कि आप तीनों में से किसकी क्लास सबसे अच्छा परफॉर्म कर, ठीक है? मैंने बोला भी बताओ अब क्लास में एवरेज क्या था, बोला एक बच्चे का में कुछ बच्चे थे, 2-3 बच्चे उनका स्कोर 99 था, हर क्वेश्चन करते थे, बाकी सबके जो थे 60, 65, 70 ऐसे मार्क्स, ठीक है? टोटल 20 बच्चे थे, 5 के 99 थे, बाकी 15 के 60, 65 थे। एवरेज क्या आ जाएगा? 80, 85। आपकी क्लास में सारे बच्चे थे, उनमें सबके स्कोर 82, 83, 82, 83 क्या? आपने कहा जी 82, 83, उन्होंने कहा जी 87, ठीक है ना? इनके क्लास में बच्चे थे, किसी की 80 आए, किसी की 90 आए, किसी की 75 आए, किसी की 95 आए। हमें किसको मानूं इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही? आपकी मानूं? 4-5 बच्चों के 99 आए हैं, बाकी लेकिन सबके 60 के आसपास। आपकी मानूं सबके 82, 83 आए हैं, आपकी मानूं कि 70, 75, 85, 90 तक आए हैं। कैसे मानूं? अगर मीन की बात करूं, मीडियन की बात करूं तो शायद आपका अच्छा हो या फिर इक्वल आ रहा हो। क्या मानूं? मेरे को देखना है कि हर बच्चा मीन से कितना दूर है। मीन अगर आपका 80 है तो हर बच्चा मीन से 5 दूर है, आपके में हर बच्चा मीन से 10 दूर है, आपके में हर बच्चा मीन से 3 दूर है, आपके में हर बच्चा मीन से 1 दूर है। तो मैं इनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी मानूंगा कि सब बच्चे के 85 स्कोर था और हर बच्चा मीन के बिल्कुल पास पास, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसलिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। डेटा फैक्ट है टुवर्ड्स डेटा मीन के आसपास है, कम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना? लैपटॉप क्यों तरह चल रहा है आजकल, पहले तो बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, एक सीपीयू उधर, क्योंकि कॉम्पैक्ट और छोटा आ जाए दुनिया और कॉम्पैक्ट नहीं जाती। डेटा इज कॉम्पैक्ट, सारी वैल्यूज मीन के पास पास, कोई डाउट? डेफिनेशन बना गया कैसे होता है, इसको निकालते कैसे मैं बता रहा हूँ। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो हमने ले लिया, इसका सिग्मा, सिग्मा यानी इसका सम इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय एन। कितना है अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑब्जर्वेशन, एन इज इक्वल टू 5, जितनी ऑब्जर्वेशन उतना एन, 5 माइनस 1 इज 4, ठीक है? इज इक्वल टू एच क्यू आर टी ऑफ वैल्यू गलत आई है, हमने कैलकुलेशन गलत करी है, अंडर रूट है, तो इसका सम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और उसका सम
डिवाइड बाय सम ये था ना, डिवाइड बाय n-1 4 का अंडर रूट। चलो जो भी कैलकुलेशन निकालना था, कुछ गलती होगी, कंडीशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू STDEV, तो है P और A, P फॉर पॉपुलेशन, S फॉर सैंपल। बताऊंगा पॉपुलेशन क्या डिफरेंस होता है। STDEV मैंने कहा ये सही आया था हमारा 25739, वो डेविएशन है, इसको मैं 5 कर दिया, 1500 की डेविएशन है। अगर ये वैल्यू 1000 1 सॉरी डेविएशन, डेविएशन हमेशा कम होना चाहिए, डेविएशन हमेशा कम होना चाहिए, और मीन और मीडियन में डिफरेंस भी कम होना चाहिए। इसमें से स्क्वायर हटा दोगे तो वो बोलते हैं वेरिएंस, स्क्वायर रूट हटा दोगे तो बोलते हैं वेरिएंस। क्लियर हुआ? एक ही बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डेविएट करता है, दोनों को बोलने का एक तरीका है बस। अगर मैं देखो, मैं आपको नेट पे बताता हूँ कि स्टैंडर्ड डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वर्सेस वेरिएंस, बात एक ही आएगी। बोथ आर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, बट दे डिफर हाउ दे एक्सप्रेस द स्प्रेड। वेरिएंस मींस द एवरेज स्क्वायर डेविएशन, और वो करता है अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बात एक ही है, बोलने का तरीका अलग है, ठीक है ना। की डिफरेंस आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। इंटरप्रेटेबिलिटी, कैसे आप उसको इंटरप्रेट करते हो, ये डिफरेंस है। कैलकुलेशन यूसेज का डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। why we use n-1 instead of n? देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो अगर आप सैंपल का ले रहे हो वर्सेस पॉपुलेशन का ले रहे हो, ठीक है ना, डेटा स्मॉल है यानी कि सैंपल है, तो आप n-1 यूज करते हो, पॉपुलेशन तो n यूज करते हो। देखो, इसका भी यही सेम चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोमिनेटर as n versus n-1, ये ना, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो आगे पढ़ेंगे हम, उसका भी रोल होता है। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास, 5, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है, डीप वाला, मैं आपको फिर बताता हूँ, पर लोगों को लगता है समझ आएगा नहीं आप लोगों को। ये डेटा कितनी फ्रीली मूव कर सकता है, 5 की बात करूं तो नहीं कर सकता। अगर इसको मैं 4 बोलूं तो वैल्यूज आपस में एडजस्ट हो सकती है, 1000 को ऊपर लो, 1000 नीचे लो, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा आ जाती है, ये फ्रीली मूव कर सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अमूमन n-1 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला अमूमन n-1 होता है। ये चीजें बाद में आएंगी, ठीक है ना, मतलब ये इसकी डेरिवेशन कैसे हुई फॉर्मूला की, वो वाली चीज है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वेरी करता है। अब हम जब पॉपुलेशन लेते हैं तो हम n लेते हैं ज्यादातर, सैंपल को n-1 लेते हैं ज्यादातर, आप देखोगे तो, ठीक है ना। तो इसका चक्कर होता है, ठीक है ना। फिर होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, फिर होता है मेजर ऑफ रेंज, ठीक है। आज मैं यही रोकता हूँ, उसका रीजन क्या है कि शायद कल आपके 2 बच्चे और ऐड होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उनको मैं तो ये सारा कुछ बहुत ज्यादा रिपीट ना करना पड़े। मैं आपको उनको सिर्फ ये जो चीजें होंगी इन्हें सिर्फ 15-20 मिनट बता दूंगा, तो उसका एडिशन होते हैं तो, और हम आगे क्लास में क्योंकि अगर इससे मैं आगे जाता हूँ तो मैं रेंज पे जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा नॉर्मल का, और फिर जाऊंगा हिस्टोग्राम पे, कोरिलेशन पे जाऊंगा, और कल अगर मैं कवर करूंगा तो मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा आपकी, ये कवर करूंगा, और शायद रिग्रेशन भी कवर करूंगा, ठीक है। तो फिर भी मेरी क्लास में वैसे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इधर उधर का कुछ नहीं, सिर्फ जो मैंने बताया है ना, सिर्फ उसी को एक बार माइंड में, जब आप
पढ़ो ना तो अपने पास एक नोट बना दो कि मेन पढ़ा है, मीडियम पढ़ा है, मोड बच्चे को समझ लो कि क्या पढ़ा। बाकी आपको जो कंसेप्ट होंगे उनको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। जब पढ़ेगी तो मैं आपको बता दूँ। कोई डाउट? इस एक्सेल को ना सेव कर लेना। एक ना गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना लें, रोज जो क्लास के नोट्स होंगे मीन मीडियम ये वाले एक्सेल क्लास 1 करके जो भी एक बंदा जिसके लैपटॉप पे करो वो सेव कर, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। इससे क्या होगा, और इस फोल्डर का एक्सेस जी ड्राइव फोल्डर में आके एक्सेस जानते होगे ना, सबकी ईमेल आईडी लगेगी, ईमेल आईडी जीमेल वाली एक फोल्डर बनाना कोई, उससे एक्सेस सबको दे देना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। या कल कोई और लैपटॉप, आज आप इनके लैपटॉप कर दे, कल किसी और लैपटॉप पे कर दूंगा, फिर किसी लैपटॉप पे कर दूंगा, ऐसे ना। तो फिर वो ड्राइव पे अपना सेव कर देना ताकि आपको कल के लिए रेफरेंस रहे। ये चीजें जितना जल्दी छोड़ोगे ना तो भूल भी जाओगे। मैं अमूमन क्या करता हूँ, क्लास लूंगा तो आगे में इसकी डेफिनेशन भी लिखता रहूंगा, मोड नोट्स बन जाए। ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्पस से कुछ ऐसा होता है मीडियम स्टैंडर्ड डेविएशन? देखो यहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, ये एबीसी है, इंटरव्यू में एबीसी नहीं पूछते, ठीक है ना, पर एबीसी आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर कल को ये नहीं पता तो आपसे ये नहीं होगा। इंटरव्यू परस्पेक्टिव से आज ही अगर आप जाते हो, अगर आप एजेंटिक या जनरेटिव नहीं जानते तो आप इंटरव्यू में मतलब एक अच्छी जॉब के लिए बैठने लायक नहीं। आप सैलरी डिजर्व करते हो 20 लाख 25 लाख इतनी डिजर्व करते हो साल की, तो आप अच्छे इंटरव्यू में बैठने लायक अब तक नहीं हो जब तक आप एजेंटिक या जनरेटिव नहीं जानते, उसका मॉडल नहीं जानते, तो आर्किटेक्चर नहीं जानते, वो मैं आपको बताऊंगा। आप अभी एजेंटिक एजेंट मेरा पर्पस यहाँ पे, तो इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।